مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ حامد و مسلین اما بعد، ناظرین کرام، اہل مدارس سوسائٹی رجسٹریشن، ٹرسٹ رجسٹریشن، مانیتا کاغذات کے متعلق تشویش میں ہے۔ اس کی کچھ معلومات حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے سائن کے ساتھ میرے سامنے موجود ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں ان کے جوابات میں ہے۔ آپ حضرات کی بھی اس سے نالج بڑھے گی، اور جو ضرورت مند ہیں وہ صحیح طریقے پر اس سے سمجھ لیں، اور اس سے بھی سمجھ نہ آئے تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ سوسائٹی کا رجسٹریشن، جس میں کم سے کم 7 ممبر ہونے چاہیے۔ سوسائٹی میں ایک صدر، ایک نائب صدر، سیکریٹری، نائب سیکریٹری، ایک خزانچی اور 2 ممبر ہوں۔ سوسائٹی اور ٹرسٹ 2 چیزیں ہیں۔ سوسائٹی کا رجسٹریشن ہوتا ہے 5 سال میں، اس کا رینیول لازمی ہوتا ہے۔ ٹرسٹ ایک بار رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا رینیول نہیں ہوتا ہے۔ سوسائٹی کے لیے رجسٹریشن کا آویدن ضلع سہارنپور میں گھنٹہ گھر سے جو روڈ ریلوے روڈ ہے اس پر چلتے ہوئے بائیں ہاتھ پر پہلی گلی میں دائیں ہاتھ میں اوپر کی جانب رجسٹرار کا آفس ہے، وہاں سے فائل ملتی ہے، اور وہیں اپنے ڈاکیومنٹ جمع کرا کر رجسٹریشن ہو جاتا ہے۔ اس کا آن لائن بھی آویدن ہوتا ہے۔ آن لائن آویدن کے لیے تمام ممبروں کے آدھار کارڈ اور فوٹو ضروری ہوں گے۔ صدر یا سیکریٹری کا بیان حلفی بھی اس کے اندر لگے گا۔ جن لوگوں کا مدرسہ سوسائٹی رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ آن لائن آویدن کرنے کے بعد جو اپلیکیشن نمبر ملا ہے سروے فارم میں اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی رجسٹرڈ ہے، یہ اس کا حوالہ ہے۔ ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوئی لیکن آویدن جو کیا ہوا ہے اسی کا جو نمبر مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک یاد رکھنے کی چیز ہے، بہت زیادہ بہتر ہے کہ جس نام سے آپ کا ادارہ ہے اسی نام سے اگر آپ سوسائٹی رجسٹرڈ کرا لیں گے تو وہ کئی ایک جگہ آپ کے کام آئے گا اور کئی ایک مشکلات سے آپ کو بچائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سوسائٹی کا رجسٹریشن 5 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، پھر اس کا رینیول کرانا ہوتا ہے۔ مدرسے کی زمین بھی اسی سوسائٹی کے نام ہو یا کرایہ نامہ اسی سوسائٹی کے نام ہو۔ زمین کا بے نامہ ہو سکتا ہے، جو سوسائٹی اور ادارہ ایک ہی نام سے ہیں اس کے نام اس کا بے نامہ ہونا یہ سب سے اصل چیز ہے اور یہی ہونی چاہیے۔ لیکن اس پر آج کل بہت سارے اخراجات آ رہے ہیں بے نامے پر۔ اولاً تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ بھی اخراجات ہوں ادارے کے ہی نام ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن فی الحال رجسٹرڈ کرایہ نامہ بھی کرایا جا سکتا ہے، یہ کلیکٹریٹ سے ہو جاتا ہے۔ مدرسوں کے پاس ان کی زمین کا مستقل ٹائٹل رجسٹرڈ کاغذ کی شکل میں ہونا ضروری ہے، یعنی بے نامے کا مستقل سب سے مضبوط کاغذ بے نامے کا ہی ہوتا ہے، وہ ہونا چاہیے، یا کوئی ہبہ نامہ، وصیت نامہ، لیکن یہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے رجسٹرار کے یہاں سے۔ سادے کاغذ پر لکھی ہوئی اس سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ گرام پنچایت سے مدرسہ درج ہونے کا کیا مقصد ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اس طریقے کا سوال کیا گیا تھا جس کا جواب نہیں دے گا کیونکہ صحیح طور پر اس سوال کی وضاحت موجود نہیں تھی۔ کسی زمین کے شخصی ہونے کی صورت میں وہ اس شخص کی رہے گا۔ اگر کوئی محتمم ہے، اس کی اپنی ذاتی زمین ہے تو وہ اس کی ذاتی رہے گی، اس کے نام ہوگی، اس کے اولاد کے نام ہوگی، اس کے اولاد کے نام ہوگی، بھلے ہی وہ محتمم ہو، لیکن وہ زمین ادارے کے نام نہیں مانی جائے گی۔ ادارے کے نام زمین وہی ہوگی جو رجسٹرڈ بے نامہ ادارے کے نام کرا دیا گیا ہوگا۔ مدرسہ بورڈ کی ویب سائٹ پر آن لائن اجازت لے سکتے ہیں اور مدرسہ بورڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مدرسے کی اپنی سوسائٹی ہونا ضروری ہے۔ مانیتا اگر لیتے ہیں اس کے لیے سوسائٹی کا ہونا لازمی ہے۔
तकरीबन 2017 से मदरसा बोर्ड की मान्यताएं बंद की हुई हैं, लेकिन अभी किसी तौर पर कोशिशें हो रही हैं। ज़िला लेवल पर तो नहीं हो पा रही है, लखनऊ जाकर या इस तरीके पर जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं वो कोशिशें इसमें कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा होने की शक्ल में कब्ज़े की सूरत क्या है? क्या कोई पट्टा है या वैसे ही कब्ज़ा वगैरह गैर कानूनी किया हुआ है? ग्राम पंचायत से पट्टा होने की सूरत में ये जो ग्राम पंचायत की ज़मीन होती है, अगर बस ऐसे ही ग्राम पंचायत की ज़मीन पड़ी हुई थी और सब लोग राज़ी थे और उठा के बना लिया गया मदरसा, तो वो इस एतबार से मुश्किल में डालने वाली चीज़ है। अगर कोई पट्टे की ज़मीन है तो मुस्तकिल तौर पर प्रधान ने पूरे तौर पर उसे इदारे के नाम किया हुआ है, पट्टा दर्ज किया हुआ है, तो फिर वो दुरुस्त है। एक सवाल ये होता है कि सोसाइटी बेहतर है या ट्रस्ट बेहतर है? दोनों बेहतर हैं। ट्रस्ट डीड आसान और जल्दी रजिस्टर्ड हो जाती है। ट्रस्ट में खर्च भी कम होता है उसको रजिस्टर्ड कराने में और जल्दी भी हो जाता है। सोसाइटी में खर्च भी ज़्यादा आता है और टाइम भी उसमें कुछ ज़्यादा लग जाता है। ट्रस्ट के 3 मेंबर भी हो सकते हैं, उससे ज़ायद भी हो सकते हैं, और इसमें मैंने बताया कि बार बार इसकी तजदीद और रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर सोसाइटी रिन्यूअल 10 साल से नहीं हुआ है तो उसका तरीक़ाकार क्या है? अगर सोसाइटी रिन्यूअल यानी तजदीद का वक्त से नहीं हो पाया है तो उसके लिए मुताल्लिका रजिस्ट्रार से इजाज़त लेते हुए पेनल्टी यानी जुर्माना अदा करने के साथ उसकी तजदीद हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर मदरसा वक्फ बोर्ड में दर्ज है तो क्या सोसाइटी की भी ज़रूरत पड़ेगी? जवाब, वक्फ बोर्ड में किसी मदरसे की ज़मीन दर्ज है, फिर भी मदरसा चलाने के लिए उसका किसी सोसाइटी के ज़ेरे निगरानी होना ज़रूरी है। एक और सवाल, अगर किसी मदरसे के पास सोसाइटी नहीं है तो वो दूसरे फार्म में क्या लिखें? किसी मदरसे के पास सोसाइटी ना होने की सूरत में वो जल्द से जल्द एक अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड कराने की कोशिश करे। फिर ये लिखना सही होगा कि सोसाइटी रजिस्टर्ड हो रही है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन 15 दिन से 1 माह तक आराम से हो जाता है। एक सवाल है, अगर मदरसे में हिंदी इंग्लिश की तालीम चल रही है लेकिन मान्यता नहीं है तो सर्वे फॉर्म में क्या लिखें? जवाब, हिंदी अंग्रेज़ी की तालीम की इजाज़त नहीं मिली है तो यही बताया जाए कि इजाज़त अभी नहीं मिली है मगर तालीम हो रही है। सोसाइटी के एजेंडे में अगर लिखा है कि हिंदी अंग्रेज़ी वगैरह की तालीम भी दी जाएगी तो अलग से किसी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है। किसी ने सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई हुई है और उसके पास मान्यता नहीं है, लेकिन उसके सोसाइटी के जो मकासिद हैं उसमें लिखा हुआ है कि ये सोसाइटी हिंदी भी पढ़ाएगी, अंग्रेज़ी भी पढ़ाएगी, उर्दू भी पढ़ाएगी, फ़ारसी भी पढ़ाएगी, कुरान भी पढ़ाएगी, तो फिर अलग से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हमारी सोसाइटी जो काम कर रही है वो काफ़ी है। अगर हम अपने मदरसे की मान्यता कराएं यूपी बोर्ड या ओपन बोर्ड से तो कौन सा बोर्ड बेहतर होगा और मान्यता कराने का क्या तरीका रहेगा? ओपन बोर्ड से इजाज़तनामा मिलना आसान और जल्दी होने वाला काम है बिलमुकाबिल यूपी बोर्ड के। किसी भी बोर्ड की इजाज़तनामे के लिए उसके उसूल के मुताबिक मदरसे में साजो सामान काम करने उसके तरीक़े पर काम करना होगा। किसी बोर्ड से अगर मान्यता ले रहे हैं तो ज़मीन को भी इदारे के नाम देखेंगे या किरायानामा होगा, कमरे भी देखेंगे, कमरों की कुशादगी, उनके फिट वगैरह भी वो चेक करेंगे। मुदर्रिस, तलबा व तालिबात, उनका इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर भी आता है। लेकिन अगर ओपन बोर्ड से सेंटर लेने की कोशिश की जाए तो उसके मुकाबले में वो आसान है। मान्यता लेने में मान्यता भी ये मदरसा बोर्ड की अलग है, इसमें अखराजात कम आते थे, फ़िलहाल का अभी कुछ इसके बारे में इल्म नहीं है। और जो दूसरी मान्यताएं हैं जो अभी भी जारी हैं, जो BSc के यहाँ से होती हैं, उसमें अभी बहुत ज़्यादा खर्च आता है। शायद 8वीं की 2.5-3 लाख रुपए के आसपास का खर्च आ रहा है और फिर उसके मानक पूरे करना एक अलग से मसला है।
सोसाइटी या ट्रस्ट के नाम पर चंदे की सबब बड़ी रसीद कितनी होनी चाहिए जिससे कानून की मुखालफत के इल्ज़ाम से बचा जा सके। नकद रकम 2000 रुपये से ज़ायद ना हो और बजरिए चेक या बैंक खाते में ट्रांसफ़र जितनी चाहे रकम कर सकते हैं, मगर इस कुल रकम के खर्चों का हिसाब रखना होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना होगा। रसीद 2000 रुपये का कैश पैसे ले रहे हैं तो 2000 रुपये की रसीद बनाएं। इससे ज़ायद अगर पैसे हैं तो वो ट्रांसफ़र की शक्ल में हो या चेक की शक्ल में हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इदारे वाले हिसाब व किताब को बहुत साफ व शफाफ रखें और हर साल ऑडिटर से ऑडिट कराते रहें। सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त जो सीए हैं वो आपको बाज़ाब्ता रिपोर्ट देंगे जो सरकारी तौर पर गैर सरकारी तौर पर हर जगह मान्यता प्राप्त होगी। ये जमीयत उलमाए हिंद ने इस तरीके पर ये तरतीब देकर बशक्ले तहरीर आप लोगों तक पहुंचाई है। मैं इसको आपके ज़रिए वीडियो की शक्ल में आप तक मैं वीडियो के ज़रिए पहुंचा रहा हूं। तो आप इन चीज़ों में से अगर कोई चीज़ आपकी समझ ना आए तो आप हमारे ज़िला सदर जमीयत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह मदनी दामत बरकातुहुल आलिया से रब्ता कर सकते हैं, हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों में अगर कोई चीज़ समझ ना आए या कोई काम कराना हो, वो रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ हो या ऑडिट से मुताल्लिक़ हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।